میرے عزیزوں، بچوں، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج مجھے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے، تو میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں۔ قلا ناراض، کاف نہیں ملایا۔ ما ودعک ربک وما قلاک، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا۔ یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے۔ امام راضی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے 2 ترجمے بتاتا ہوں۔ والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم۔ واللیل اذا سجا، تیسرا ترجمہ، یہ امام راضی کی بات ہے اس لیے میں آرام سے کہہ رہا ہوں۔ والضحیٰ، یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں۔ والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم۔ واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم۔ بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ الم یجدک، ہاں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا۔ اجازت ہے کھڑے ہو کے پی لوں؟ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، چالی میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ انی و امتی علی کوم من الارض، قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے۔ میرے رب کہہ رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ جانتے ہی نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ الم یجدک یتیم، اب پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وحی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے، اور قریش مکہ کہنے لگے وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَا، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں، بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے۔ والضحیٰ، اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے، تیرے خوبصورت بالوں کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیسے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے،
मैंने आपको ठिकाना दिया। ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, आपको याद नहीं, आपको याद नहीं, आप मेरी तलाश में थे, मैंने आपको अपना आप बता दिया। ववजदक आइलन फ़अग़ना, आपको याद नहीं कि आप बड़ी तकलीफ़ में थे और कमी में थे, तो मैंने खदीजा से आपकी शादी करवा के आपको मालदार बना दिया। अगली सूरत भी इसी से जुड़ी हुई है। अलम नशरह लक सदरक, मैंने आपका सीना खोला, भला मैं नाराज़ हो सकता हूँ? ववज़अना अन्का विज़रक, मैंने आपके बोझ हटाए, भला मैं नाराज़ हो सकता हूँ? अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, वो बोझ जिन्होंने आपको दोहरा कर दिया था, मैंने वो बोझ हटाए, भला मैं आप पे नाराज़ हो सकता हूँ? वरफ़अना लक ज़िक्रक, और मैंने आपके नाम को बुलंद कर दिया, भला मैं आप पे नाराज़ हो सकता हूँ? इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको जन्नत की चाबी पकड़ा दी, भला मैं आप पे नाराज़ हो सकता हूँ? मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस, तो मेरे महबूब आप यतीम थे, कोई यतीम आए तो अब आपने उसके साथ वो करना जो मैंने किया। मेरे महबूब आप मेरी तलब में थे, आपसे कोई हिदायत तलब करने वाला आए तो आपने वो करना है जो मैंने किया। और मेरे महबूब मैंने आपको एक मालदार घराने में शादी करवाई, तो आप भी अपने रब की नेमतों को लोगों को बयान करें। इस सूरत में इतना खूबसूरत तनासुब है। पीछे चलो, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, दलील क्या है? अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, भला मेरे महबूब मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? आप यतीम थे, मैंने ठिकाना दिया। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा। तो अगली आयत आ रही है, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। इसका उसके साथ जोड़ है। ववजदका आइलन फ़अग़ना, इसका आखिरी आयत के साथ जोड़ है। ववजदका आइलन फ़अग़ना और वलसौफ युअतीका रब्बुका फ़तर्दा। अब मैं आपको तरतीब से बताता हूँ। पहली, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ये जाके जुड़ती है अलम यजिदका यतीमन फ़आवा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा। और आगे क्या आ रहा है? ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना। ये तीन तीन का सेट है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ये जाके जुड़ता है अलम यजिदका यतीमन फ़आवा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ये जाके जुड़ता है ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा, ये जाके जुड़ता है ववजदका आइलन फ़अग़ना। फिर अगली तीन इन ऊपर वाली तीन से जुड़ती हैं मेरे महबूब। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। सुब्हान अल्लाह, कैसे पिरोया है मेरे रब ने, किस खूबसूरत अंदाज में उसको पिरोया है। उसके आगे आता है कि ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, तो लिख रहा फ़अम्मस्साइल फ़ला तनहर, मैंने आपको अपनी तलब में अपना आप दिखाया। आपके पास लोग तलब लेकर आएंगे तो आपने उनको डांटना नहीं, उनको हिदायत का रास्ता बताना है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा, कि मेरे नबी से मोहब्बत क्यों ना करें, कि उनसे अल्लाह प्यार कर रहा है, उनसे अल्लाह मोहब्बत। कुरान ने कस्में उठाई हैं। कुरान की सबसे पहली कसम सूरह निसा, और कुरान की सबसे आखिरी कसम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। और कुरान ने जितनी कस्में उठाई हैं उनमें ये कसम सबसे खूबसूरत है। फला व रब्बिक, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ये अरबी में जब मोहब्बत की इंतहा हो तो यूँ बात की जाती है। ये मोहब्बत की इंतहा जब अल्लाह प्यार करता है तो हम क्यों ना करें।
मेरे महबूब मुझे आपके रब की कसम ला युमिनून, ये आप टोरंटो वालों को बता दें, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, जब तक आपकी ग़ुलामी में नहीं आएंगे, जब तक आपका इश्क और मोहब्बत नहीं होगा, मैं इनके ईमान को कबूल नहीं करूँगा। इस पर एक वाक़या सुनाता हूँ। एक सहाबी आया, या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे टेढ़ी होकर, मेरे घर में चंद उसकी शाखें हैं, उन पे फल लगता है, वो जो टूट के गिरता है, मेरे बच्चे उठा लेते हैं, हम गरीब हैं, वो भागा भागा आता उनके मुंह से खजूर निकाल लेता है। उसको कहें कि बच्चों पर इतनी ज़्यादती ना करें। आपने उसको बुलाया, वो मुनाफिक था, वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, ये असल में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, कोई और खजूर होती मैं दे देता, ये तो मेरी माजरत है। वो तो मुनाफिक था, वो उठ के चला गया। एक सहाबी बैठे थे, वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर मैं वो खजूर लेके दे दूं तो मुझे जन्नत में ले देंगे? उनका नाम है अबू दाहदाह। आपने कहा हाँ, तू मुझे लेके दे दे, मैं तुम्हें ले दूंगा। वो उसके पीछे चले गए, ए भाई कितने में बेचोगे? मैंने कहा जा जा, मैंने अल्लाह के नबी को नहीं दी, तुम्हें कैसे दे दूं? कहा अच्छा भाई मुंह से बोल, मुंह से बोल, कितने लेने हैं? तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा कि अपना सारा बाग मुझे दे दे, खजूर ले ले। बाग में 600 खजूरें और ये खजूर किसी और को देनी है। तो कहता है पक्के हो, फिरोगे तो नहीं? कहा मैं पागल हूं, मैं फिरूंगा? मुझे 600 खजूरों का बाग मिल रहा है। उन्होंने कहा डन, खजूर मेरी, बाग तेरा। वो भागे भागे आए, या रसूल अल्लाह मैंने सौदा कर लिया। कहा कैसे किया? कहा सारा बाग दे के खजूर ले ली। आपने कहा फिर मेरा सौदा भी बदल गया। कम मिन अदकन रदाहा वदारन फयाहा ले अबिदाहदाहा फिल जन्ना। मेरे साथी, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में एक घर नहीं महल बना दिए, सैकड़ों, और एक बाग नहीं हजारों बाग तेरे लिए तैयार कर दिए। ये है ईमान की निशानी, ये है मोहब्बत की निशानी। मेरे नबी की जिससे ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ये खिलाड़ियों जैसे बाल बनाते हैं। एक छोटा सा बच्चा मुझे कराची में मिला, तो वो जो अजीब से बाल नहीं यहाँ से ऊपर हो जाते हैं, तो मैंने कहा ये तुमने बाल कैसे बनाए हुए हैं? आपको पता नहीं, मैसी कोई था, मैसी, हाँ आपको पता नहीं मैसी के बाल ऐसे हैं? मैंने कहा बेटा बुरे लगते हैं। कहा कैसे? मैसी के बाल हैं, बुरे कैसे लगते हैं? जब आदमी किसी को बड़ा बना लेता है, उसको फॉलो करता है। उनकी जिंदगी सिर्फ 30 रोजे नहीं है, हज नहीं है, आप हर लाइन से इस काबिल हैं कि आपसे प्यार किया जाए। आप अपने वज़ा, शक्ल, सूरत, सबसे पहली चीज़ जो अट्रैक्ट करती है वो सूरत है, वो शक्ल है, वो मंजर है कि आदमी उसमें गुम हो जाता है। मेरा इधर नारायण में बयान हो रहा था, तो उन्होंने बाहर बयान रख दिया। सामने इतना खूबसूरत मंजर था कि मैं बोलते बोलते उधर देखता तो मुझे अपना मजमून भूल जाता कि मैं क्या कह रहा था। ये तो दुनिया है। अल्लाह ने मेरे नबी को कैसा बनाया? एक बद्दू औरत है, अनपढ़ औरत है, उम्मु मअबद अल-खुज़ाइया, वो मेरे नबी का हुलिया बताती है। आपको तर्जमा करके सुनाऊंगा, लेकिन आप अल्फाज का रिदम और अल्फाज में म्यूजिक वो आप सब महसूस करेंगे। वो बद्दू औरत कहती है रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ाअ अबलजल वज्ह हासिनल खल्क़ लम तअबहु खुजला वलम तुज़रि बिही सअला वसीमुन क़सीम फ़ी ऐनैहि दअज फ़ी अशफ़ारिही वतफ़ फ़ी सौतिही सहल फ़ी लिह्यतिही कसाफ़ा फ़ी उनुक़िही सतअ वसीमुन क़सीम अकहल अहवर अज़ज अक़रन इन तकल्लम अलाहुल बहा व इन सकता फ़अलाहुल वक़ार व कअन्न मंतिक़हु खरज़ात नज़्मिन यनहदरन। अल्लाह, पता चला कि अल्फाज का रिदम। वो कोई बोलो तो सही, क्या रिदम है। अब तर्जमा सुनो। वो कहती है अपने खामिद को कि अबू बाबत, एक शख्स आया था, भाई समझ के
खाया करो, हम खाने नहीं आए, जिंदगी गुजारने आए हैं। रमज़ान में कैसी तबाही फैलाते हो, समोसे भी, पकोड़े भी, मछली भी, मुर्गी भी, फिर ऊपर से 7 अप, वो कहते हैं वो उसमें तो गैस होती है, उसका गैस बाहर निकलती है तो डकार आता, कहता शुक्र है हाजमा हो गया। वो हाजमा नहीं होते, रसत अनास हो गया। कहा इतना खूबसूरत था कि सर से पांव तक हुस्न उसका गुलाम था, खूबसूरती उसकी बांधी थी, और मैं जिधर से देखती थी मुझे हुस्न ही हुस्न नजर आता था। और जब मैं उसके चेहरे पर देखती तो मेरी आंख नहीं भरती थी, मेरा जी चाहता था मैं देखती जाऊं, देखती जाऊं, देखती जाऊं, मेरा दिल नहीं भरता था। कौन? वसीम। वसीम उसे कहते हैं जिसको देखने से दिल ना भरे। कसीम, जिधर से देखो हुस्न हो, उसे कहते हैं कसीम। तो उसकी सब मेरे नबी की आंखों की तारीफ है। इन 5-6 अल्फाज का एक मतलब है कि अल्लाह ने कायनात में ऐसी हसीन आंख किसी की बनाई नहीं थी। हुस्न जमाल आंखों में, और पलकें बड़ी लंबी, ये औरतें यहाँ बोल नकली लगा लेती है ना लंबा लंबा करने के लिए, तो मेरे नबी के कुदरती ये बाल लंबे थे हुस्न को बढ़ाने के लिए। दाढ़ी बड़ी खूबसूरत थी, ज़बान में, आवाज़ में जादू था, आवाज़ में कशिश थी, आवाज़ में एक ऐसा दिल खिंचता था। गर्दन लंबी थी, सर से पांव तक हुस्न जमाल था। जब वो बोलते थे नूर छा जाता था, जब वो खामोश होते थे वक़ार छा जाता था। और सवा अलबतन व सदर, सीना और पेट बराबर, सबतल कस्ब, सीधा कद था, सीधा कद, बिल्कुल सीधा कद। अरीद अल मनकिबैन, छाती चौड़ी थी। तवील अज़्ज़नदैन, बाजू लंबे थे। रहबर राहा, ये हथेली बड़ी चौड़ी थी, चौड़ी हथेली सखावत की निशानी होती है। रहबर मसीह अल क़दमैन, पाँव इतने नरम थे लगता था उस पर तेल लगा हुआ है, और पानी उससे यूं नीचे चला जाता था। और यमशी तकफ़ियन, कंधे झुका के चलते थे। अल्लाह, यहाँ 4 आदमी सलाम करें तो आदमी यूं हो जाता है, और मेरे नबी को फरिश्ते सलाम कर रहे हैं और आप यूं चलते थे, ऐसे ऐसे चलते थे, थोड़े से कंधे झुका के चलते थे। ऐसे आप कभी नहीं चले। जो देखने में ऐसा हसीन हो, उससे प्यार क्यों ना किया जाए। अगर अपने नबी से प्यार ना करें तो किससे प्यार करें? कौन वफादार है? क़यामत का मंजर होगा, मैं अपनी बेगम से कहूँगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मेरे रब की कसम। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी यौमइज़िन मिन यौमइज़िन बनीह। सफिया, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ये कहेगी मौलाना साहब मैं आपको नहीं पहचानती, ये यूसुफ मेरा बेटा बैठा है। मैं कहूँगा कौन हो, कहाँ से आए हो? ये कहेगा अब्बा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? भाई भाई को नहीं पहचानेगा। माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है। माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना ही नहीं है, और जब जहन्नुम में एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे, और सब नफ्सी नफ्सी, आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, यूनुस, ईसा, मूसा, यूशा, लूत, शुएब, सालेह, हूद, सारे अंबिया नफ्सी 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 नफ्सी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। एक तरफ से एक आवाज आएगी, मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, तो नजरें तवाफ करेंगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये कौन बोल रहा है? सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है? जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेंगी तो वहां मेरे आपके झोली फैला के खड़े, या मेरी उम्मत को, या अल्लाह मेरी उम्मत को। कौन सी उम्मत जो सारी जिंदगी शराबें बेचते रहे,
जुए खेलते रहे, जिना करते रहे, सूद खाते रहे, झूठ बोलते रहे, चोरियां करते रहे, डाके मारते रहे। मेरा नबी कह रहा है मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा। तो इससे प्यार ना करे तो और किससे करे? मौत पे रिश्ते टूट जाते। मेरे नबी ने उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा। इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे, सुनो ए अल्लाह, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा ले, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा ले। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं कर, मेरी जान बचा ले। मरियम जाने, तू जाने, मेरी ईसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिस्सलावात व तस्लीमात, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं कर, मेरी जान बचा। और मेरा नबी कहेगा, या अल्लाह, मेरी उम्मत को बचा ले। कौन सी उम्मत? मैंने सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया। मेरा नबी कहता, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुमने मेरी नस्ल को कत्ल किया, तुमने मेरे घराने को उजाड़ दिया। सब बिलत ये नहीं कहेंगे, या अल्लाह, मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले, मेरी उम्मत के मुत्तकी, मेरी उम्मत की राबिया बसरी जुनैद बगदादी को बचा। नहीं, या अल्लाह, सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे, सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल। यहाँ अल्लाह कहेगा, वाला सौफ, माफी चाहता हूँ, मैं जज्बाती हो गया हूँ। मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, अपने हबीब की जिंदगी को अपना लो।